Sir, are you on mute or as I am unable to hear you? No, no. We'll start in another 2 minutes. We'll wait for next 2 minutes and then we'll start this presentation. 15, 13. Also, Nilesh, you are right now in Rajasthan. हाँ दादा क्या बोल रहे हैं? You are in Rajasthan right now, na? Yes, yes, yes. I'm in Rajasthan. पुणे से ज्वाइन करेगा क्या? अभी तो किया नहीं। So good evening, everyone. Thank you for joining this session. This presentation is basically on the project decodification of hydraulic hose assemblies for heavy earth moving construction and mining equipment. तो बेसिकली आपको मालूम है कि जो डिफरेंट heavy earth moving machines, mining machines and construction different type of machines are there. So basically majority of these machines can be classified in different four different this thing. One is backhoe loaders, second one is excavators, third one is wheel loaders, and fourth is compactors. Apart from these four types of machine, different other type of machines are also there, but 80% of this market or 80% of application is driven by these four different type of machines. So you talk about backhoe loaders, you see 80% market share is with JCB. Apart from JCB, Mahindra and Mahindra is also there, Bull Machine is there, CNH is there. So different models and different brands are there in backhoe loaders. Same thing is with the excavators. In excavators, you see Tata Hitachi is market leader, JCB is there, Hyundai, Kobelco, Komatsu, Saini, XCMG. So these players are in the excavators market. Wheel loaders, JCB is there, Caterpillar is there, BEML is there, and compactors again, CNH, Vidgun, JCB. So different type of these companies are there who are manufacturing all these type of mining machines. So keeping in mind the development in the infrastructure and the kind of development we are going to see in next maybe 5 years or 10 years, the requirement of these machines are going to be increased in coming years. So basically, you see all these machines are having hydraulic hose assemblies. So every machine, be it backhoe loader or excavator or wheel loaders, you will see number of hydraulic hose assemblies are there in these machines. And the total market size of this segment, the hydraulic hose assembly for the replacement market, I am not talking about the OEM segment. OEM means the product which are used to make the machines, the hydraulic hose assemblies which are used to make the machine. But
the replacement market, once the machine is in the field, and whenever these get failed and replacement come, in that case, the replacement market of hydraulic hose assembly in India is in the tune of around 1200 crore. So out of this 1200 crore, around 20% of market share is catered by OEMs. मीन्स जो OEM जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनका जो स्पेयर डिवीजन जो है वो अराउंड 20% मार्केट शेयर कवर कर रहा है. 80% ऑफ मार्केट शेयर इज कवर्ड बाय द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब जो thousands of assemblers are there in India, so they are catering this replacement market for the hydraulic hose assemblies. So replacement market की अगर मैं बात करता हूं, out of 1200 crore, around 960 crore is catered by the unorganized sector, जिसमें जो assemblers है different locations पे जो assembler available है, वो as per part number या as per requirement of the customer they are supplying this hose assembly to the customer. मेजर चैलेंज उसमें ये आता है कि जो रिप्लेसमेंट मार्केट है या जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो काम कर रहा है, they are having number of different brands. They are using different brands to make these hose assemblies. They are using different type of hydraulic end fittings. So basically, the quality of the end product is not at par as the OEM. So basically, they are just using hoses from maybe a brand. They are just procuring fitting from anywhere, and they are just making hose assemblies and they are supplying it to the customer. So this market is very scattered. आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं है जो कि इस पूरे मार्केट सेगमेंट को कवर कर पा रहा है. Everybody is having some. They are working in some pockets. Maybe in Calcutta, somebody is working in Nagpur, somebody is working in Raipur or Delhi or Jaipur or different places. So this market is very scattered, but this is scattered by a lot of number of these assemblers. So to organize this market, जो basically जो replacement market after market का है, उसको organize करने के लिए FCP इंडेक्स ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इस मार्केट को कैसे हम ऑर्गेनाइज वे में काम कर सकते हैं. सो बेसिकली इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैं आप जस्ट आपको बता देता हूं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, जो असेंबलर है उसके पास पार्ट नंबर्स की डिटेल्स नहीं है. सपोज इन टाटा हिटाची in one excavator around 50 to 60 hydraulic hose assemblies are there, but assemblers may not have the availability of all these details of these part numbers. कि उस पार्ट नंबर XYZ पार्ट नंबर है, उसका क्या लेंथ है, उसका क्या ID है, उसका क्या एंड फिटिंग लगा हुआ है, उसका क्या ओरिएंटेशन है. तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द assemblers to have the details of all the part numbers. So FCP, what they are going to do, in the first phase we have identified these 8 brands जो कि जिनके पास आज की तारीख में अराउंड 70 to 75% मार्केट शेयर है, जो कि इनकी मशीन्स मार्केट में अवेलेबल है. अराउंड 75% मार्केट इज कवर्ड बाय दीज ब्रांड्स. सो JCB इज देयर, Hyundai is there, Seni is there, Caterpillar, Komatsu, Volvo, Tata Hitachi and Kobelco. So in the first phase, what we are going to do, we will be having details of all these part numbers. चाहे JCB में excavator है या backhoe loader है या wheel loader है या compactor, all the machines will be covered and part number details will be available for JCB or for all these 8 brands. एक बार पार्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा, एक बार उनका कंपाइलेशन होगा, उसका वैलिडेशन होने के बाद में हम उसको एक डिजिटल फॉर्मेट में कंप्लीट करने वाले हैं. सो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन द डिजिटल फॉर्मेट, and maybe apart from the BOM of that particular part number, we will be having the pictorial diagram of that part number also, so that we can know what is the orientation of that hose assemblies. So complete details will be available for all these 8 brands. You see, as I told you, the market of construction equipment is going to be increased in coming days. So this is the data for last 10 years, from 2014 to 2024, the market has almost doubled
from 50,000 to it has crossed 1,07,000 of machines in the market. So फर्स्ट जो हमारा फेज है वो कंप्लीट होगा कि आपको डेटा जो चाहिए आपको बेसिकली हाइड्रोलिक होज असेंबली का पार्ट नंबर्स का डिटेल्स. सो वन पार्ट इज दैट फेज वन इज द कंपाइलेशन ऑफ डेटा एंड द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस पार्ट नंबर्स. इन दिस पैरेलल एक्टिविटी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम अक्रॉस इंडिया वी आर गोइंग टू हैव फ्यू असेंबलर्स, जो कि मैं आपको जस्ट जो जहां जहां जिस लोकेशंस पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, बेलारी, आइदर भुवनेश्वर और तालचेर, दो में से किसी एक जगह करेंगे, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, धनबाद और झरिया. दिस इज ओवरसीज, लाइक दुबई में हम प्लान कर रहे हैं, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी, हैदराबाद, इंदौर, जमशेदपुर, कलकत्ता, मुंबई, नागपुर, पुणे एंड रायपुर. तो ये लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं डिपेंडिंग ऑन द जो मार्केट जहां पे होगा, हम उस हिसाब से हमने कुछ लोकेशन हमने डिसाइड की है. प्लस कुछ टेक्निकल टेरिटरी है, जैसे धनबाद में आप देखते हैं कि सो मेनी कोल माइंस आर देयर. गुवाहाटी सिलीगुड़ी में आप देखते हैं कि काफी अपर नॉर्थ में काफी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. भुवनेश्वर इज अगेन माइनिंग सेक्टर, बेलारी स्टील सेक्टर. तो कुछ टेक्निकल टेरिटरी है और कुछ आपका लोकेशनल ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, जिसको हमने आफ्टर much of the research we have identified these places where we'll be having one assembler and we will be providing all these details to that assembler. क्या हम प्रोवाइड करने वाले हैं? फर्स्ट, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है फॉर हाइड्रोलिक होज असेंबलीज, उसका डिकोडिफिकेशन डेटा दैट विल बी प्रोवाइडेड टू हिम. इसके अलावा क्या सर्विसेज एफसीपी इंडेक्स प्रोवाइड करने वाली है? नंबर वन इज सोर्सिंग ऑफ hydraulic hoses, apart from hoses, hose fittings, protective sleeves, O-rings and end caps. Like आपको असेंबली बनाने के लिए, होज असेंबली बनाने के लिए नंबर वन बेयर होजेस चाहिएगा. सेकंड वन आपको एंड फिटिंग का रिक्वायरमेंट है. देन अगर प्रोटेक्टिव स्लीव या फायर स्लीव है वो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा. O-rings का रिक्वायरमेंट रहेगा, एंड कैप्स का रिक्वायरमेंट रहेगा. तो बेसिकली एफसीपी टीम इज विल अप्रोच फ्यू ऑफ द इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर, उनसे बात करके और होसेस का सोर्सिंग करने वाली है. ये बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू परचेज दीज होसेस डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. हम केवल आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसका वैलिडेशन करेंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे और एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो होसेस का होगा वो हम बेसिकली उसको हम प्रोक्योर करने वाले, मतलब उसको बेसिकली एक एग्रीमेंट उस कंपनी के साथ करने वाले हैं. एंड दैट कंपनी विल सप्लाई होजेस टू द असेंबलर. जो हमने 12 या 15 या 17 असेंबलर जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको ये होजेस एक प्राइस में, जो कि एक एग्रीमेंट वाला प्राइस होगा, उसके हिसाब से उनको सप्लाई करने वाले. हाइड्रोलिक होजेस में बेसिकली 3 टाइप के होजेस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो कि जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा. एक है पायलट लाइन होज, second one is braided hose and third one is spiral hose. पायलट लाइन और ब्रेडेड होजेस में जो भी आपका 1SN 2SN या आपका पायलट लाइन होजेस का जो रिक्वायरमेंट है वो रहेगा. स्पाइरल होज में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि स्पाइरल होज में इंस्टेड ऑफ हैविंग 4SP, 4SH, R12, R13, R15, we will be having one type of spiral hose. It may be a 380 bar वर्किंग प्रेशर होज और 420 बार वर्किंग प्रेशर. लेकिन उससे एडवांटेज ये होगा आपको कि आपको डिफरेंट टाइप के होजेस की इन्वेंट्री आपको नहीं रखनी पड़ेगी एंड यू विल बी हैविंग वन काइंड ऑफ होज फॉर द स्पाइरल एप्लीकेशन. तो ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हम जो मैन्युफैक्चरर है उनके साथ में करने वाले हैं. एंड बेसिकली इसमें एडवांटेज ये होने वाला है कि अगर आप सपोज एनी इंडिविजुअल आप किसी के पास जा रहे हैं, किसी सप्लायर के पास जा रहे हैं, तो अब वो एक सपोज आपको 100 रुपीज पर मीटर में कोई पार्ट कोई होज मिल रहा है, और अगर आप एक बल्क में आपको एक रिक्वायरमेंट लेके जाते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द डिस्काउंट फॉर द बल्क बाइंग. सो दैट डिस्काउंट और द प्राइस बेनिफिट विल बी एप्लीकेबल फॉर द ऑल द असेंबलर्स. तो एक वो बेनिफिट आपको मिलने वाला है जो भी असेंबलर्स उसमें काम करने वाले हैं.
ये जो आपका होज होगा वो इट विल बी हैविंग सेम ब्रांडिंग, विल बी लाइक हैविंग वन ब्रांड फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ होजेस। एक सिंगल ब्रांड में ही काम करेंगे जिससे कि एक ब्रांड इक्विटी आपको मिले, एक मार्केट में जो है उसका ब्रांड, आपको ब्रांड अवेयरनेस उस प्रोडक्ट के बारे में हो पाए। सो सोर्सिंग इज वन पार्ट विच इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एफसीपी सर्विस। देन सेकंड इज लाइक जो भी असेंबलर्स हैं उन असेंबलर्स को एक पूरा टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड किया जाएगा। सपोज जमशेदपुर में कोई असेंबलर है जो कि इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, तो बेसिकली उसको पूरा एक लेआउट, किस टाइप की मशीन्स को उसको रखना है, मशीन्स का जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो उसको शेयर किया जाएगा। देन लेआउट किस हिसाब से रखना है, लेआउट ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल वो किस हिसाब से उसको स्टोरेज करना है। ट्रेनिंग टू ऑपरेटर्स एंड टेक्नीशियन, जो भी उनके यहाँ काम करने वाले होंगे उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि हाउ टू मेक द होज असेंबली इन ए इफेक्टिव वे। तो ये basically all these 15 or 16 or 13 assemblers, they will be having same sort of their layout, मतलब मशीन वो भी सेम मशीन्स रहेगी उनके पास में और सेम लेआउट रहेगा। देयर में बी सम डिफरेंस इन द स्पेस, किसी के पास अगर 1000 स्क्वायर फीट की जगह है या किसी के पास 800 स्क्वायर फीट की है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट जो लेआउट रहेगा बेसिकली इट विल बी आइडेंटिकल लेआउट फॉर द होज असेंबली फैब्रिकेशन। अब आपके पास बेसिकली सारे जो डेटा है वो आपके पास अवेलेबल हो गया है। HEMM का, हेवी अर्थ मूविंग मशीन की जो भी असेंबली आपको चाहिए उसका आपके पास डेटा है। सेकंड, आपके पास सोर्सिंग हो गई है। आप सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, होजेस, फिटिंग, वो आपने वो आपके पास मिल गया है। होजेस, फिटिंग, प्रोटेक्टिव स्लीव, सोर्सिंग का सारा अरेंजमेंट हो गया है। आपको टेक्निकल सारा जो लेआउट आपको किस टाइप से बनाना है उसका हम सारा आपको दे दिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप इसका मार्केटिंग कैसे करेंगे। बेसिकली मार्केट जैसा मैंने आपको बताया, इट्स अराउंड 950 करोड़ मार्केट इज देयर। तो वी आर नॉट गोइंग टू हैव द कोई 50% या 40% मार्केट शेयर हमको नहीं मिलेगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी वुड लाइक टू हैव एटलीस्ट 15 to 20% मार्केट शेयर ऑफ दैट अनऑर्गेनाइज्ड जो अपने पास 950 या 1000 करोड़ का जो मार्केट है उसमें हम चाहेंगे कि नेक्स्ट 2 to 3 years में वी शुड हैव एटलीस्ट 15 to 20% मार्केट शेयर। तो इसको मार्केटिंग के लिए हमके पास क्या स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको शेयर करूंगा। सपोज somebody is there in Delhi, तो what we are going to do, हम उस असेंबलर जो मास्टर असेंबलर बोले या उसको फ्रेंचाइज बोले, उस असेंबलर के अंडर में वी विल बी हैविंग एटलीस्ट 15 to 20 रीसेलर्स जो डिफरेंट लोकेशंस पर रहेंगे और डिफरेंट जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज है वहां पे रीसेलर्स को अपॉइंट करेंगे। और रीसेलर्स बेसिकली वो मास्टर असेंबलर से परचेज करेगा और जो छोटे छोटे जो उसके उसके रीजन के कस्टमर है वो उन कस्टमर्स को कैटर करेगा। जो रीसेलर्स रहेगा ही विल बी एक्टिंग एज ए, उसके पास हो सकता है कोई शॉप हो, उस शॉप में हो सकता है कि वो कोई दूसरे अर्थ मूविंग के स्पेयर पार्ट में भी वो डील कर रहा हो, तो उन दूसरे स्पेयर पार्ट के साथ साथ वो होज असेंबलीज भी अपने पास रहेगा और एज पर पार्ट नंबर जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसको वो सप्लाई करेगा। सो रीसेलर इज वन जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमारे लिए एक इफेक्टिव वे में जो काम करने वाला है। सेकंड, फ्लीट ओनर्स। फ्लीट ओनर्स वो आप कॉन्ट्रैक्टर्स मान सकते हैं या वो जो बड़े इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स आप उनको मान सकते हैं जिनके पास में 300 या 300 से ज्यादा का फ्लीट है। फ्लीट में आपका हो सकता है बैकहो लोडर रहे या एक्सकेवेटर रहे या व्हील लोडर्स रहे या कॉम्पैक्टर्स रहे। So those who are having more than 300 of machines as their fleet, आज की तारीख में more than 2500 फ्लीट ओनर्स इंडिया में है जिनका डेटा हमारे पास में है। तो बेसिकली ये फ्लीट ओनर्स का हम एग्रीमेंट करेंगे, जो आपका मास्टर असेंबलर रहेगा उसके साथ एक एग्रीमेंट होगा और जो भी रिक्वायरमेंट उस फ्लीट ओनर की होगी वो बेसिकली वो जो मास्टर असेंबलर है वो उसको फुलफिल करेगा। थर्ड इज रेंटल बिजनेस और कॉन्ट्रैक्टर। आज की तारीख में कई ऐसे
बड़े प्लेयर्स हैं जिनका पास अपनी मशीन्स हैं और वो रेंट आउट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी अपने लिए एक बड़ा कस्टमर सेगमेंट है जिनको आप होज असेंबलीज का रिक्वायरमेंट रहता है और आप हम उसको उसके साथ एग्रीमेंट करके वहां पे हम होज असेंबलीज को सप्लाई कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज रिफर्बिशिंग मार्केट। रिफर्बिश मार्केट आप देखते हैं कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ओल्ड मशीन्स परचेज कर रहे हैं, चाहे वो इंडोनेशिया से इंपोर्ट करें या ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करें, वो इंपोर्ट करके उसका कंप्लीट बेसिकली रिफर्बिशमेंट कर रहे हैं, जो जो ओल्ड पार्ट्स है उसको पूरा कंप्लीट रिप्लेसमेंट करके दे आर मेकिंग इट एज गुड एज न्यू, और वो मार्केट में नई मशीन सेल कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ बिग मार्केट, क्योंकि इंडिया में आपको मालूम है कि जो लेबर कॉस्ट है वो काफी कम होने से काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं। सर ये म्यूट करेंगे कोई? So refurbished market is also a lucrative market जहाँ पे कि होज असेंबलीज जो है उसका रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के हमारे पास बिजनेस सेगमेंट है जिसमें कि हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज लाइक हाउ टू प्रमोट दीज प्रोडक्ट्स। सो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि होज का है उसका एक ब्रांड रहेगा और जो होज असेंबली है उसका एक डिफरेंट ब्रांड रहेगा। So we will be promoting hose assembly as a single brand across India. आज की तारीख में हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हो सकता है आज से 2 या 3 साल बाद हम एक्सपोर्ट मार्केट की भी बात करें, बट आज हम एक्सपोर्ट मार्केट का इतना आइडिया हमको नहीं है कि किस मार्केट में कौन सा मशीन पॉपुलर है, बट डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दैट सेगमेंट ऑल्सो कि हम एक्सपोर्ट मार्केट में क्या कौन सा मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट की बात करें या अफ्रीका की बात करें, बट that is also a big market. But first we need to establish our brand in Indian market. So based on the feedback from the Indian market we can cater to the maybe Middle East market or the African market. So उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, मार्केटिंग साइड से आप देखते हैं जितने भी फ्लीट ओनर्स हैं जिनके पास 300 या 400 या 500 मशीन है, तो we will be having seminars, we will be having cluster meetings, we will be having tech days at their end, and we will like give them the how our product is as good as the OEM product. So and if they are using the right kind of product, then how their efficiency or productivity of the machine will be increased. So we will be having these seminars and tech days at the customer end to educate their team. Then brand promotion of hose assemblies at pan India level, in India as well as in future, as I told you, in Middle East or in the African market. We'll be having this digital and social media marketing to create brand awareness, advertisement in digital and print media. So basically the thing is जैसा मैंने बोला कि 80% मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज होने के कारण यू आर हैविंग दिस मार्केट विच कैन बी कैप्चर्ड if we promote this product on the pan India basis and if we can create some sort of brand equity. डेफिनेटली जो कस्टमर है उसको भी अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, वो भी चाहता है कि मेरी जो मशीन है, मशीन की कॉस्ट 70, 75, 80 लाख है, लेकिन बिकॉज ऑफ बेड क्वालिटी होस, अगर उसका कुछ फेलियर होता है, अगर कुछ लीकेज होता है, होज बस होता है, तो उसका पूरा 80 या 70 लाख की मशीन है वो आइडल हो जाती है, उसका कोई यूज नहीं होता है। वो मशीन तो ब्रेकडाउन में जाती ही, लेकिन उसके साथ साथ जो एसोसिएट उनके साथ जो शायद डंपर का जो फ्लीट होता है वो भी कुछ काम का नहीं आता है, और पूरा जो है पूरा सिस्टम जो ब्रेकडाउन हो जाता है। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में कि वी नीड टू हैव ए गुड क्वालिटी होज असेंबलीज for the Indian market at a competitive price, and if we can provide good services, if we can provide that product on time, और जब उसे चाहते हैं कि मे बी 24 आवर्स और 48 आवर्स में अगर वो प्रोडक्ट मिल जाता है, तो डेफिनेटली आई कैन सी ए बिग मार्केट फॉर hydraulic hose assemblies in the replacement market. Definitely initially there may be some teething issues, there may be some issues, but over a period of time I can foresee a good opportunity for this type of products in Indian market.
तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप यू जस्ट आस्क व्हाट एवर क्वेरीज यू हैव, यू कैन आस्क, आपके पास कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, क्वेरीज आप पूछ सकते हैं, और कोई डाउट है आपको लगता है कि इसमें ये कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या ऑलरेडी हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो हम इस आपके साथ क्यों एसोसिएट हुए, इसमें जो भी कमर्शियल एस्पेक्ट है उसके लिए जो मैं सेपरेटली मैं उनको एक जो हमारा एग्रीमेंट का है ड्राफ्ट, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या कमर्शियल इसमें लगने वाले हैं। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट वी आर विल बी लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्ट बाय एंड ऑफ दिसंबर, और फर्स्ट क्वार्टर में हो सकता है कुछ हम अपना इन्वॉइसिंग भी शुरू कर दें, कुछ अपना बिजनेस भी शुरू कर दें, लेकिन अभी हमारा ये टारगेट है कि बाय 31 दिसंबर हम इस पे पूरा एक इस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करें। तो So Nitesh, can I summarize and add something? यस, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। Okay, Anish Chatterjee. Okay, now in short, मैं दो तीन just bullet points बोलूंगा. One is the big gap between जो OEM जिस प्राइस में बेचते हैं spares and जो हम लोग मार्केट में मिलता है, there is a big gap between that. दूसरा चीज है, इस गैप के बीच में हम लोग का प्राइसिंग कहीं फिक्स अप होगा, ठीक है? इट विल बी, क्वालिटी विल बी एज गुड एज OEM's क्वालिटी, बट प्राइसेस विल बी लोअर देन द OEM. अभी हम लोग पता नहीं 10% लोअर होगा कि 20% होगा, 30% होगा, बट हम लोग का बात चल रहा है विद द होल मैन्युफैक्चरर एंड एज वेल एज फिटिंग मैन्युफैक्चरर. इसमें होगा कि होज अलग रहेगा, फिटिंग अलग रहेगा. हम लोग सोर्स उनके साथ, जैसा नीतीश ने बोला है, एग्रीमेंट करेंगे फॉर प्राइसिंग, एंड डायरेक्टली आप लोग जो मास्टर असेंबलर्स रहेंगे उन लोग डायरेक्टली उनसे प्रोक्योर कर पाएंगे एट दैट डिस्काउंटेड प्राइस. तो उसमें आपको प्राइस एडवांटेज मिल जाएगा. दूसरा है होज एंड फिटिंग का भी सेम थिंग हम लोग कर रहे हैं. वी हैव आइडेंटिफाइड फिटिंग मैन्युफैक्चरर, मोर देन वन, एंड उसका हम लोग सेम ड्राइंग्स देख के मैन्युफैक्चर करा रहे हैं. एंड ये होज एंड फिटिंग का असेंबली का वैलिडेशन भी हम लोग करेंगे. दैट इज द कैच पॉइंट कि आपको होज मिलेगा और फिटिंग जो मिलेगा, ये दोनों अगेंस्ट अदर वैलिडेटेड रहेगा. वैलिडेटेड यानी उनका कंपैटिबिलिटी फुल रहे, जैसे OEMs को जैसा मिलता है उस टाइप का कंपैटिबिलिटी मिलेगा. ये पॉइंट. दूसरा है कि आपका, अगर आप खुद बना रहे हैं, आप बनाइए. आपका ब्रांड का अगर कुछ बना रहे हैं, आप से ब्रांड का बना रहे हैं, ठीक है, उसको बनाइए. ये आपके ब्रांड से कम्पीट नहीं करेगा. आप दोनों चीज रख सकते हो, बट ये आपके ब्रांड से कम्पीट करेगा क्योंकि आपके ब्रांड का प्राइस कुछ होगा. मान लीजिए आप सिर्फ गेट्स पार्कर का बना रहे हो या एरोक्विप का बना रहे हो, तो आपका प्राइस शायद अधिक होगा. दिस ब्रांड विल बी अ लिटिल चीपर देन दैट. अदरवाइज अगर मान लीजिए चाइनीज ब्रांड से आप बना, तो आपके ब्रांड का लोअर. टू वैरायटी, एक वैरायटी रहेगा जिसमें इंस्टेंट क्वालिटी रहेगा, जो बिल्कुल, नॉट दैट योर क्वालिटी इज बैड, नथिंग लाइक दैट, बट क्वालिटी की आपका वैलिडेटेड एंड होज रहेगा. दैट विल बी एक प्लस पॉइंट. एंड सबसे बड़ी चीज है, इट इज लाइक योर, यू नो, बिग मैकडॉनल्ड्स. हेलो, एक सेकेंड. मैकडॉनल्ड्स ऐसे रहता है, हर जगह आप देखिए तो एक कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी रहता है. दैट विल बी द एश्योरेंस टू द बिग फ्लीट एंड ऑल दोस थिंग्स कि भाई यहाँ से हम कहेंगे तो कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी रहेगा. दूसरा चीज ये है कि इन असेंबलर, मास्टर असेंबलर, दैट कमर्शियली नितेश विद यू इंडिविजुअली, कि आप एक मास्टर असेंबलर फिर भी उसके साथ आप रिटेलर भी कर सकते हैं, यू नो. सो दैट इज दैट, वो क्लैरिटी अधिक मेरे पास नहीं है, नितेश के पास है. टेक्निकल क्लैरिटी दिस कि आपका कंसिस्टेंसी रहेगा ऑल ओवर पैन इंडिया, कंसिस्टेंसी रहेगा, एंड इट विल बी अ गुड होज, but the price will be because we will be giving them, assuring them some much bigger market than what they are getting. Over to Nitesh for any questions.
Hello, Nitesh. I think everyone has been muted. हाँ राइट. सो अनूप जी, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रोजेक्ट में? नहीं नहीं, शायद आपने सब सारे तो क्लियर किए आपने और अमरीश सर ने. अगर किसी का कोई डाउट हो तो वी कैन क्लियर इट. राइट. सो कार्तिक, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? Yes, sir. First of all, good evening, everyone. The initiative sounds really good. मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन था, like just I will iterate कि if I am to understand it right, you mean to say there will be one particular brand of hose and then a fitting selected, so both the selections are from you, the hose brand as well as the fitting. I understand you have validated it and you want that to be confirmed. I understand that. So the commitment from the franchisee will be that only in that this assembly will go. Is that my understanding is right? Correct. Absolutely. Okay, fine. Then Yes. the And thing it is, can what be, about it can be, the hose can be branded Karthik brand, right? It can be Karthik brand. yeah, sir, No. I respect that. I mean, we have not decided on the brand. It will be Karthik brand promoted by FC. Gotcha. Okay, And we conflict from में the same source to everyone. And most importantly, this fitting hose will be compatibility. हम लोग का स्टडी हो गया है, उसका compatibility हम लोग चेक करके उसके साथ साथ क्रिपिंग डेटा भी देंगे कि कितना अंदर जाएगा, कितना क्रिप डाया होगा. So the consistency is there. So the Karthik brand of hose assembly will have a name in the market कि भाई ये जो है, it is a little than the OEM's market, but as good as them. That is the main idea. thanks for the clarity, Amrish sir. Considering the like current scenario में क्या हो रहा है, we are going with Gates and Eaton or now Danfoss. These are the major driving brand. Even we have a private brand. Honestly speaking, we have a private brand ourselves. We are positioned in some select markets. Honestly speaking, that is the position which is there as far as we are concerned, because okay, these brands are doing some good work. Now, okay, this now because and then we have also number commitment to these brands. Like Gates के साथ we have a number commitment. With Danfoss also we have a number commitment. So that is there. Now You carry your commitment with them. You can give them their brand's commitment also. It's not that. See, this is going to be an business to what? yeah. Because like, ठीक है, as we are buying, we will continue buying. This will be additional because what Nitesh is saying that we have got a 960 crore worth of unorganized, right? Yes, so sir. we are not acting in 960 crore का हम लोग 50% दे ले या फिर even if we, in the first year, if we get 10%, that is true. So this year additional buying and additional selling. Yes, like Amrish sir and Nitesh ji told, see, you travel on your regular road, but this is something, a new road is being built where there is a enough opportunity of 900 plus crore business. So we are aiming at maybe a mere 5 or 10% of the collective business in total. So we don't have anything. We don't have any competition with the current scenario. We are trying to organize a market again. Now regarding the brand, like Amrish sir explained, we are just making a stream. We are preparing a stream hose, like which meets the bend radius requirement, which meets the pressure requirement, which meets the impulse requirement, what is required for those machines, and we are trying to standardize those hoses. Understood, sir. Understood. That puts things in perspective. Yeah. So think about the market side, which is untapped. I understand that now. That puts things in perspective. This is so that the inventory can be at your control, because now you buy say for example 4SP, 4SH, R12, R13, and R50. Yeah. You have to keep about 3, 4, 5 items from a particular size. So here it will be only one. Yeah. Only one, so that the cash flow is controlled. True, sir. True. Okay. So, sir, what I understand from the entire presentation, that we will be having a collaboration of different people who are into this business, who can continue with their own business, and then we are opening a new avenue, and it will be a streamlined thing. Now the whole thing depends
how are we going to do about it? The commercial terms and conditions and the price. वो individually हम लोग बात कर लेंगे. हाँ जी. Nitesh, Prices, individually the to you. price of the product will be defined by FCP index. Price means price will be different for the different kind of customer. So if you are selling to the resellers, maybe price will be different. If you are doing business with the fleet owners, price may be different. So that price will be controlled by FCP, and everybody will be having, like, MRP will be same for all the assemblers. MRP will be same, but the discount structure will be different for the different kind of customers. Completely agree with you. Completely understand. So the basic, actually the advantage of doing all these things is, like, number one, we will be having consistency in the quality. Since if everybody will be having the same sort of machine, same site, same sort of data, this crimping data, everything is same, then the consistency in the product will be there. So basically, we are just trying to create a parallel market for the which OEM is going. Our product will be as good as OEM, but the prices will be at least 20 to 25% lower than the OEM price. Please don't go and tell him, but the fact is we are going to hit the OEM market. We will be having premium. We will be selling that product at a premium, but the prices will be lower than the OEM, so that we can create a market for our product. If we keep the prices same as the OEM, then the customers will prefer to buy it from OEM. But if prices are less, then definitely customers will come to us. The only reason that the customers don't buy from the OEMs is because of that exorbitant price. Absolutely. Like, I have been into this business for last 25 years. Right. And I completely understand the price point at which we sell and the OEM sell is at least 5x. Absolutely. We are So, selling at, suppose 3,000, the OEMs are selling at least 12 to 15,000 rupees. OEMs also know that. So our aim is to keep the prices lower than the OEM prices, so that there is some attraction from the customer to buy it from us. One more thing, sir, I would like to add. Yes, sir. Sir, Amrish, sir, please go ahead. Yeah. No, it will be substantial. ये नहीं कि 2% में 3% में. OEM जिस price में आपको part number XYZ देगा, whose assembly car, our prices will definitely be a very lucrative price as compared to OEM's price. Hello. Yes, Dada. हाँ, unmute करिए sir. Yeah, please go ahead. City Industries. Unmute करिए. हाँ. मैं तो सर वो जो मैं देख रहा था, और एक challenge मैं I have experienced that lot of these fleet owners, they are setting up their own units at their workshops. One. Second, the machines like Volvo, if they're selling 20 machines to you, they set up a service center at their site. So we were suppliers to a lot of big fleet owners. Nowadays we are facing these kind of challenges. How do we overcome these challenges? See, I'll do one thing. Sir, first of all, we need to understand why they set up this satellite plants. It is because they never get the desired quality and consistency. That is why they go for the container shops. So that is why we are coming up with this concept of genuine assemblies or something better life assemblies. Another thing is market की fleet owners ने Volvo का मेरे को आज का नहीं, बहुत पहले का पता है, रांची में और somewhere like that उन्होंने एक ये दिया था, but their main business is selling the Volvo machines. They do not put that much of a focus on making those assemblies. Number one. Number two is आपको ये like these market dynamics will keep on changing almost every 2-3 years, 4 years आपका market dynamics change होता रहेगा, and we'll have to steer our market also accordingly. So वो तो आज के लिए जैसा है, कल को definitely change हुआ.
उस हिसाब से उसके पहले वी विल हैव क्रिएटेड द ब्रांड इमेज से आपका जैसे जैसे कार्तिक या आई फाइंड अभिनव इज आल्सो देयर, so we can have a Abhimanyu brand. Okay, so that we have not decided, and so like it's mainly about the McDonald's consistency and quality is more important, and prices of course will be much lower than the OEMs. Like I'll share my experience. Yeah. A lot of our customers who are fleet owners, either they have switched over to having a workshop, like crimping unit at their own workshop. Second, lot of people, suppose they bought 5 Volvo excavators, and along with that, with one Volvo excavator, generally the thing is they buy 5 dumpers. So with 5 they buy 25 dumpers. So the Volvo, what the deal with the Volvo company they have done is 5 years buyback program, and maintenance would be on Volvo's account, AMC kind of thing. So there we lose out on time. No, I think there's enough space. There's enough space not to lose out much. क्योंकि आप उनका भी प्रॉब्लम्स देखिए, उनको होस्ट ठीक टाइम पे मिलता है किसी से? एकदम सब मिलता है। 24/7 सर्विस देते थे हम लोग। बोल रहे हैं ना कि हमको भी देना पड़ेगा सर, वही सर्विस लेवल हमको देना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूँ सर, अगर जिस कॉस्ट में वो बना रहा है और उससे कम अगर हम उसको सप्लाई कर पाएंगे तो वो कस्टमर आपके पास आएगा परचेज करने के लिए। बात ये है, देखो उनका कोर कॉम्पिटेंसी होल असेंबली नहीं है सर। जो वोल्वो है या फ्लीट ओनर है, उनका कोर कॉम्पिटेंसी होल असेंबली बनाना नहीं है। उनका कोर कॉम्पिटेंसी है कि मुझे रोड बनाना है, मुझे टनल बनाना है, मुझे हाईवे बनाना है ना। तो ये तो उनको ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, ये उनको राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए बेचारे वो मजबूरी में आके वो काम कर रहे हैं कि अपने यहाँ पे असेंबली शॉप लगा रहे हैं। प्राइस सेंसिटिव है सर, प्राइस सेंसिटिव है। नहीं वो क्या है ना, हाँ, लेकिन क्या होता है उनके पास भी फिटिंग का इतना वैरायटी देता है, हर फिटिंग रखना भी उनके लिए चैलेंज है, होल रखना भी चैलेंज है उनके लिए। तो देखो क्या फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, वो फाइन ट्यूनिंग तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है बेसिकली, है ना। वो एक बार जब आप मार्केट में एंटर करेंगे तब मालूम चलेगा कि यार हमको ये करना है या हमको ये नहीं करना है। तो वो तो एक बार एंटर करने के बाद ही मालूम चलेगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, अपन उन चैलेंजेस को फोर्स ही करके जहां तक अपन फाइन ट्यूनिंग कर पाएंगे करेंगे उसको। बिल्कुल सर, वो तो वील हैव टू स्टीयर आवर वे थ्रू इट। ये कोलैबोरेशन मॉडल है, ये कंपटीशन मॉडल नहीं है, ये कोलैबोरेशन मॉडल है। इसमें बेसिकली वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ईच अदर। मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है और जो एफसीपी इंडेक्स की जो स्ट्रेंथ है उसको हमको लिवरेज करना है बेसिकली। प्रोजेक्ट वो है ना। मतलब कई चीज जो है वो हम नहीं कर पाएंगे और कई चीजें वो आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। बेसिकली हम कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे लिवरेज कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, वो है बेसिकली। मार्केट डेफिनेटली है। आज से 10 साल पहले जोमेटो को कोई नहीं जानता था, स्विगी को कोई नहीं जानता था, ओला को कोई नहीं जानता। बट आज की तारीख में कोई घर पे जो है वो महिलाओं को अभी खाना बनाने में वो नहीं आ रहा है, जस्ट दे हैव टू प्रेस द स्विगी बटन और उनके पास खाना आ जाता है। तो उसी तरह से जो फ्लीट ओनर्स बेचारे लेके बैठे ना मशीन, वो सब बोलेंगे कि भाई अगर हमको सिटी इंडस्ट्रीज उसी प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम क्यों घर में खाना बनाएं। डेफिनेटली सर, है ना। तो मार्केट कॉन्सेप्ट तो चेंज हो रहा है सर। एकदम चेंज हो रहा है सर, और उसी के दौरान हम लोग को उसके इनोवेशन और सारा चीज करके करना होगा। बिल्कुल। और अगर जो 15 असेंबलर्स अगर साथ में काम कर रहे हैं उनको तो एक दिमाग नहीं चलेंगे सर, 15 दिमाग चलेंगे सर, वो भी आप देखिए। और सर आप लोगों की गाइडेंस रहेगी वो सबसे ज्यादा रहे सर। सबका मैं कह रहा हूँ ना कि वो सबको एक दूसरे का जरूरत रहेगा। नहीं डेफिनेटली सर। तो ये एक जस्ट थॉट प्रोसेस है जिसमें हम पिछले 6 महीने से काम कर रहे थे। अमरीश चटर्जी साहब का बहुत इनपुट मिला, हमारा अनूप साहब ने बहुत इसमें काम किया है। तो नाउ इट इज द राइट टाइम टू बेसिकली लॉन्च दिस प्रोजेक्ट। तो वही है, हम जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, तो मैंने हमको सबको उनको पर्सनली हमने मैसेज करके भाई आप ये मीटिंग ज्वाइन कर लें। जो काफी लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं भी कर पाए हैं तो मैंने इसका वीडियो जो है रिकॉर्ड करके मैं उसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। तो बेसिकली और हमको हर सिटीज में एक एक लेना है, चाहे वो दिल्ली है या हैदराबाद है या बेंगलोर है या चेन्नई है या अहमदाबाद है या पुणे है, एक एक असेंबलर के साथ में काम करना है। तो
जो भी इसका इंटरेस्टेड और एक एडवांटेज होएगा सर कि लोग आपस में compete नहीं करके उधारी वाला चक्कर जो ना क्रेडिट, सर, ये ये एक खत्म सबसे करना बड़ा है, एडवांटेज, ये खत्म ये करना है। सबसे बड़ा सी एक चीज बताएं आपको, मैं बता सकता, यू हैव सीन अभी तक हम लोग करीब 2-2.5 साल से एफसीपी इंडेक्स, एफसीपी इंडेक्स इज वर्किंग विद यू ऑल, ओके, विद ऑल योर गुड्स। अभी तक आप लोगों ने फील किया होगा कि एफसीपी इंडेक्स इज अ कंसल्टिंग कंपनी व्हिच इज not going to buy or sell anything, but we are a collaborating, generally सब वाले कंपनी है आपके लिए, हम लोग कम, एंड इसमें किसी को नुकसान नहीं होगा, जो हम लोग वो करेंगे किसी को नुकसान नहीं हो रहा, दे विल बी एडिंग टू देयर, ये नहीं समझिए कि आपका है, आपका वो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, दैट वी विल डिस्कस विद ईच एंड एवरी पर्सन। उनको ओनली थिंग इज, हम लोग का जो टेक्निकल डेटा है इसको आपको मान के चलना पड़ा, एसओपी हैज टू बी फॉलोड, तभी जो है इट इज पॉसिबल टू हैव अ कंसिस्टेंट क्वालिटी। ये आपको, आप यू विल एग्री, नहीं ये नहीं कि कोई बोल रहा है हम प्रिंट करेंगे, कोई बोल रहा है उसको हम इतने में प्रिंट करेंगे, नहीं, यू विल हैव टू फॉलो फॉर दिस ब्रांड, व्हाटएवर यू कॉल इट, कार्तिक अभिमन्यु ब्रांड, नीतेश ब्रांड, अमरी, जो भी बोलेंगे हम लोग नाम, वी विल डिसाइड, एंड इसके हर एक पीस का कंसिस्टेंसी हैज टू बी देयर, दैट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ इट। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना तो जरूरी है यस 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 यस, यूनिफॉर्मिटी रहेगा, ये चीज राइट रहेगा। सो एंड यू हैव सीन इन दीज कपल ऑफ इयर्स दैट हम लोग किसी का ऐसा नहीं करना चाहिए, वी ऑलवेज कीप द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी का नहीं हो, सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि वो रहेगा, एंड वी विल देन, but yeah, something you will have to follow the to make sure that the consistency is. किसी के कुछ क्वेश्चन? Sir, I am from ICO Power, Bangalore. Yeah, please go ahead. ICO Power, Bangalore. How do you deal with competition among ourselves? Suppose you have got some 12 assemblers or 15 assemblers. And like for me, I have got business pan India. Right from Kashmir, Raipur, Bhilwara, sitting at Bangalore, I am doing all this business. So how do you deal with those kind of business? Like when you will have one in Rajasthan, when you will have in Tamil Nadu, where I do business in both places. See, there are so many others also who are doing the same thing. For example, there is a person sitting in Udaipur. He does a business all over India. Okay, you are. How do you so as it is you are competing. This will be an additional line for you. This is what I am saying. Here again, suppose we all 15 are doing the same pattern. No. That won't. Anup sir, ये बोलो अपनी. Go ahead. Yes, sir. Tell me, Nitesh. हाँ अनूप सर, Sharma sir. Hello. Haji. Sharma sir, there is a huge market around. Let us not think about competing within. Again, we insist that it is a collaborative effort, that we should tackle the space allotted. Say if you are sitting in Bangalore, if you are being allotted the Bangalore territory, whether it is a technical territory or a geographical territory, you should stick to it. Right, but right now I'm already doing pan India business. No, that is with this hose and with this fitting, you can do only the territory allotted. You can continue your business with your existing brand. business in that case? That I can continue. Yeah, you do that all over India. existing business में तो कोई competition है ही नहीं ना सर. ये तो existing business, there is no limitation. आप अपना कर सकते हैं, आप कितना इंडिया में बाहर कितना करना है, जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं. But with this particular hose and this fitting, you cannot enter trespass the territory. That is one particular brand of hose and this particular fitting. Yes. Not used other than my Bangalore territory. Right, sir. Right, sir. Yeah. Right. So
How much competitive it will be compared to the existing brand which we are doing now? Sir, we are trying to We are giving you trying to commonize the also. hoses. We are trying to commonize the tail part of the hose tail part of the fittings, and the bargain will be better. We cannot predict any numbers how cheap it will be. No. How, but it will be. We can say only one word. It will be right priced. But Anup, like changing the hose, in 4SH, you go to R13 or you come to 4SP. The price difference is there in all these brands, all these. It will be a grades, no? common price. It will Sir, be this will be a common price. Say we are just batting for half bent radius hose in R15, which can resolve all the issues in flexibility, pressure rating, impulse, as well as pressure, temperature. So we are What trying about to the bat price? for the half bent radius R15, which will resolve each and every issue. Now comes to the price. Now we are trying to negotiate it hard. Let us right now the fingers are crossed, but again in another month's time we'll be able to negotiate it to a good level. Okay. We never say that this will be competitive as good as Chinese hoses, but this I will don't be mean- I competitive don't have any- comparing no, no. Parker Gates and all. I know, I don't compare with Chinese hoses. Yes, sir. In fact, I don't even Chinese. another thing I'll tell you. Another thing I'll tell you, Mr. Sharma. See, it is something like you have seen Bata shops. Okay, they are selling their shops. They are selling their shoes. They are keeping in so many of the Bata outlets. You will see they are keeping Hush Puppies. They are keeping other brands also. So the customer which walks in, he can always buy. You continue having market share which you have already got. Additional business which you will be getting from a very unorganized sector who do not have any quality. This will be an additional business. Quite a bit of it will be chewed from the OEM's spare market, and quite a bit of it. So this will be an additional business. Try to understand that. You are not competing with your. Now, this hose which you are going to source it is going to be imported? We are trying for both the pilot hoses. The pilot hoses and braided may be made in India, or some of the braided will be imported. Else will be naturally imported, because there is no quality manufacturers in India right now who make these spiral hoses. So that has to be imported. Okay. But not Chinese. We are not going to get it from China. It can be either from Malaysia, can be from Turkey, can be from Korea, can be from Thailand or somewhere else. No. And fittings will be made in Fittings India. will be made in India itself. It will be a good product where we are trying to get it made from local sources, say from Rajasthan, from Punjab, and even from Haryana. But this Punjab fittings is good enough. Sir, the Punjab fitting means you don't go by that word Punjab. Punjab, there are many good manufacturers who make fittings exactly as per drawings, because this is all been made as per drawing, design, and validated products. This is not a regular conventional or traditional product. We are not going to offer you all. Okay. This all the These are not drawings will be traditional done by products. that's how These are we get the consistency. many of the products are single piece fittings. Many of the product will be one piece fittings, and the rest will be non-sky fittings, two piece. In the beginning, you said that you have got this decodification only of this JCB, Hyundai, SANY, Caterpillar. Yeah, to start with these 8. What about the other machines which are still with the plenty are there? Yes, see, there are numerous. There are about 75 different manufacturers who make about this 35 category of machines. But first of all, we are trying to start with this 8. Again, the product line will increase every month or every fortnight. We'll add one brand, and with all the set of machines. Then this is the first stage of earth moving machines. Then the second stage, maybe after a year or two, we'll be passing on to cranes, then to forklifts, then to different compressors and different products.
So the development will go on. What about these compressor lines? See, again, there are like Ingersoll Rand, Atlas Copco, and there are a lot of compressors which Yeah. need spares. Hmm. So that is after 3 or 4 or 5 years, not now. Now we are focusing on this. We'll start with this first eight brands. Then we'll add up another one more brand, like say we'll add Ligong, we'll add the other like Cat, we'll add Cato, we'll add Samsung, we'll add other products. So the earth moving segment, once it finishes, then we'll add on the other products like forklift and cranes and all. Hmm. First, we need to establish market for these 8 brands. Okay, and then in a phased manner, we will be adding few new brands and few new products. Sir, it is like Uber started. Uber started with metros. Now it is available to the second-tier cities also. The same way we are focusing on about 8 brands now. After 8 brands, it will be 9, 10 like that. About 75 brands are there in India, which is operating upon. Okay. And in the process, we might, it's not rigid line. We might take your advantage also, your share your this thing at the cost, of course, on a business platter. इनपुट We can take मार्केट का the- रिक्वायरमेंट है, कौन सी Front. मशीन्स का ज्यादा पॉपुलेशन है, उस बेसिस पे अपन कॉल ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. लेकिन जो रिसर्च आया था उसमें ये लग रहा था कि जो अराउंड 60% ऑफ मार्केट शेयर इज कवर्ड बाय दीज 8 ब्रांड्स. ओके, सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद दिस 8 ब्रांड्स एंड इट विल बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. More things, sir. We can take advantage of each other's data pool. बिल्कुल. Yeah. We Exactly. will be ready to share the data pool which we have developed over the last 25 years Right, or 20 right. years or so. Right. Yes. Completely agree on that. Yes. Yeah, we got to collaborate. That's what we are saying. That we got to collaborate. Every one of you have your own, and we are also not doing charity. We will take a small pie from it. But if we take small pie from every one of you, then it will be a big pie for us. So it will be a win-win-win situation. Yes, Customer, definitely. you and FCP English, everyone. We always work on this strategy that it has to be a 3-win situation. Sir, Nitesh sir, one question, one doubt arise. Yes, sir. Hello, Amrish sir, Nitesh sir. Ji, sir. Like you said about the Yeah. brand, that you will be setting up one particular brand. Yes. And which brand are you going to set this? सर अभी डिसाइड नहीं किया है क्या नाम रहेगा, थोड़ा सा टाइम बात हो रहा है. काफी कुछ ऑप्शंस हमारे पास में है ना. 5-6 ब्रांड का अभी लिस्ट मतलब ऑप्शंस है हमारे पास में. अभी डिसाइड नहीं किया है, मतलब मे बी इन ए मंथ और सो विल बी डिसाइड अबाउट द होज ब्रांड एज वेल एज होज असेंबली ब्रांड. नहीं, नितेश, ही मस्ट बी आस्किंग कि आप क्या गेट्स ब्रांड लेंगे? नहीं, इसमें से कोई ब्रांड नाम नहीं रहेगा. नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं. अनूप ब्रांड. हाँ, वो ब्रांड आपको हाँ. डिसाइड करना है, तो वो हो सकता है कि एक बार हम इसका कुछ मार्केट सर्वे टाइप करके फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या ब्रांड जो है सुटेबल रहेगा. आप लोगों से भी जो हम लोग के पार्टनर्स रहेंगे, सर उनसे भी एक मिनट पूछेंगे कि सर, व्हाट डू यू सजेस्ट. यस, जो हम शर्मा जी अभी थोड़ी देर पहले आप ये बता रहे थे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ब्रांड से कर देंगे, जैसा अभी कोई स्टार्टिंग में अपने कुछ बोल रहे थे ना. नहीं सर, उसमें जो होस्ट का ब्रांड रहेगा, इट विल बी वन ब्रांड फॉर होस्ट एंड वन ब्रांड फॉर होज असेंबलीज. क्योंकि बेसिकली सर ये ब्रांड का खेल है. अगर आपने ब्रांड इक्विटी आपने अगर उसको किया है इंडियन मार्केट में, तो यू विल गेट द मार्केट. अगर ब्रांड नहीं है, अगर आपने ब्रांड को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो वही बात हो जाएगा कि कोई राम के नाम से बेच रहा है, कोई श्याम है, कोई घनश्याम है. 50 ब्रांड हिंदुस्तान में चल रहे हैं, लेकिन मार्केट शेयर किसी के पास में भी 2% भी मार्केट शेयर नहीं है. मैं ये समझता हूँ कि होस्ट का ब्रांड भी कॉमन रहेगा और असेंबली का ब्रांड भी कॉमन रहेगा. एब्सोल्युटली यस सर, बिल्कुल. होस्ट का ब्रांड भी कॉमन रहेगा, असेंबली का ब्रांड भी कॉमन रहेगा. ये जो भी 15 सेलेक्टेड होंगे, those people will be the brand owners for that particular geography. So all 15 will have the same brand and same brand. Yes, Same yes, brand of yes. hose, same brand of fitting, same brand of hose assembly. Okay.
और उसमें भी ये रहेगा कि उसको बेयर हाउस सेल करने का राइट्स नहीं रहेगा। सपोज हमने आपको बनाया है असेंबलर बेंगलोर के लिए, तो आप बेयर हाउस आप सेल नहीं करेंगे ओपन मार्केट में, यू विल सेल ओनली हाउस असेंबलीज। गॉट इट। ठीक है ना? तो अदरवाइज क्या होगा ना, अगर आपने हाउस मार्केट में सेल किया तो वो वापस हाउस असेंबलीज जो है वो अपना बना के सेल करेगा, तो मालूम नहीं चलेगा कि आपने बनाया या किसी और ने बनाया। क्योंकि ये पर्टिकुलरली अब हमें होस्ट इंटीग्रिटी पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि होस्ट असेंबली जाएगा तो उसका वैल्यू बनेगा, उसका एक ब्रांड बनेगा। और जितना इंडिया का मार्केट है सर, उतना ही बड़ा मार्केट यूएई, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का है। हम इंडिया का क्यों, इंडिया का तो सोचना ही है, हमको एक्सपोर्ट मार्केट का भी सोचना है, आज नहीं तो 2 साल बाद। So one more question regarding the competitiveness and price. राइट अभी existing brands का हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, जैसे जी। maybe Parker, Semperit और Gates, different people are doing with different उनके कंपैरिजन में आपकी जो प्राइसेस आएगी कम वो रहेगी कैसे सर, रहेगी? कम रहेगी। राइट नाउ आई एम टेलिंग यू, हमको जो आप बोल रहे हो 30% ओईएम से कंपनी में बेचने से माल बिक जाएगा, ऐसा सिनेरियो है नहीं वैसे। सर ऐसा है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये तो मैं आपको केवल एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं कोई आई ये नो, आई गॉट इट। 25% की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बार जब आप अपने पास प्राइस आएगी कि हमको किस प्राइस में होज मिल रहा है, किस प्राइस में फिटिंग मिल रही है, बट डेफिनेटली जो प्राइस में पार्कर या गेट्स या डेनफोर्स या मनोली बेच रहा है, उससे हमारी प्राइस काफी कम रहेगी। वो उससे कॉम्पिटिटिव रहेगी तो ही मार्केट कर बिल्कुल पाएगा। सर, देखो ऐसा है ना कि मार्केट अगर आपको एंटर करना है तो कुछ तो आपको जगलरी करना होगा सर, तभी काम होगा। और मैं आपको एक साउथ इंडिया के लिए स्पेसिफिक एक और मेरे को जो मन में बात आ रही बता रहा हूँ। यहाँ पे पॉलीओस ब्रांड बहुत फेमस है, जी सर। चेन्नई की, बिल्कुल एंड दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव इन प्राइस। राइट। आप कहीं पे भी साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको पार्कर और पॉलीओस का ही सर होस्ट का नाम मिलेगा। शर्मा साहब मेरी बात सुनिए आप। अब हिंदुस्तान में 150 ब्रांड अवेलेबल है ना सर? लेकिन फिर भी पार्कर और गेट्स के पास में 50% मार्केट शेयर है, प्राइस उनकी सबसे ज्यादा है, बेच रहा है ना? नहीं, लेकिन साउथ में मैं Exactly बोलिए। ओहो सर, मैं साउथ की भी बात नहीं कर नहीं, रहा हूँ साउथ में, ऑल ओवर मैं इंडिया साउथ में। की भी बात करता हूँ मैं आपसे। सर प्रोडक्ट जो है ना, आप डिमार्केशन प्राइस मेरे को के लिए मालूम जाए, है। सर प्राइस के लिए जाएंगे तो उसका कोई एंड नहीं है, कोई उसका लोअर एंड नहीं है सर। अगर अपन आज से जो है ना, वो लेकिन वड़ा पाव पॉलीओस इज वेरी 12 वेल। रुपए का भी मिलता है, और नहीं, मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं तो वो बर्गर जो है 150 में भी ले रहे हैं लोग। आई नो, मैं नीतीश जी में सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, पॉलीओस इज वेरी वेल एक्सेप्टेड मार्केट के अंदर में है यहाँ साउथ में। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो इंडिया की बात करता हूँ सर। मैं इंडिया में कितना % मार्केट शेयर है पोलियोस का? नहीं, इंडिया का तो नहीं मालूम, साउथ में काफी है। अरे सर, मैं क्या सर, सब प्रॉब्लम हर जगह रहेगा सर। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ना तो आपकी जरूरत है ना हमारी जरूरत है, फिर तो काम चलेगा आराम से। एक कंपटीशन चीज रहेगा, समझ के चलिए, ये रहेगा, और आप एडिशनल ब्रांड रहेगा। कंपटीशन तो रहेगा ही सर, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि अगर अगर पोलियोस के पास में 900 करोड़ का मार्केट है तो अच्छी बात है। मैं तो बात करता हूँ 900 करोड़ में से 15% की बात कर रहा हूँ सर, मैं तो उससे ज्यादा की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मेरे को तो शर्मा उसका साहब, मार्केट शेयर चाहिए ही नहीं। हाँ जी। शर्मा साहब, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जो भी प्लान कर रहे हैं, इट इज अबाउट ए क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट प्रोडक्ट। आई नो, मतलब 2 होस्ट देने के बाद उसमें से एक लीक हुआ तो एक रिप्लेस करेंगे, वो वाला काम हम नहीं सोच रहे हैं। हम जो सोच रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंट, मतलब एक ब्रांड इमेज बिल्ड करने के लिए हम लोग ये पूरा कोशिश है। और वही हम लोग उसी में हमारा पूरा एफर्ट है कि उसको अच्छे ब्रांड बनाओ। इसके लिए होस्ट भी हम लोग चुन के ला रहे हैं, फिटिंग भी हम लोग सेलेक्टेड करके रहे हैं, वैलिडेट भी करके ले रहा है, और किस मशीन में क्या लग रहा है वो पूरा उस हिसाब से उसको प्लान हो रहा है। वी आर नॉट हियर टू सप्लाई एनी inferior products. We are here to supply product as well as we are here to deliver confidence. लेकिन सर, ये आफ्टर मार्केट का एक बहुत बड़ा सिनेरियो ये है कि प्राइजेस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। सर प्राइसेस का रोल जिंदगी भर रहेगा, लेकिन वो नीचे जाने के लिए उसका कोई लिमिट भी, लेकिन जो कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको एक थोड़ा सा प्राइस रखना भी पड़ेगा। एंड कस्टमर आपके पास 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, लेकिन 15 बार के बाद आपके पास ही आएगा। अनूप साहब, मैं आपसे फुल्ली एग्री करता हूँ
लेकिन ये चैलेंज आएगा, आप मान के चलो। आने दो ना सर, सर वी आर चैलेंज रेडी तो टू आएगा, एक्सेप्ट कोई भी ऑल दोस बिजनेस करेंगे। चैलेंजेस। सुनिए चैलेंज तो आएगा शर्मा सर। जी बोल रहे हैं, सुनिए, चैलेंज के बिना तो सब कोई बिजनेस कर लेगा। चैलेंज तो आएगा ही, और उसके लिए हम लोग तैयार भी हैं। देखिए, एक और बहुत बड़ा चैलेंज आएगा कि आप अगर मान लीजिए गेट्स के डीलर हैं, या आप पार्कर के डीलर, उनसे भी प्रेशर आएगा कि आप ये वाला होज नहीं लोगे, ऐसा भी प्रेशर आ सकता है। बट उनको यही कन्विंस आता करना है, है ये भी कि आता है। उनका वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है। दिस इज एन एडिशनल मार्केट विच वी आर गेटिंग, जो कि बहुत कम है, उनका वॉल्यूम कोई आप कम नहीं कर रहे हैं। So this is a separate store being built This is within your facility. this is एडिशनल। मैंने बोला ना, बाटा की दुकान में हर्ष पपीज बिकता है, तो जो बाटा खरीदने वाले वो बाटा ही खरीद के आएंगे। जिनको हर्ष पपीज खरीदना वो हर्ष पपी खरीदेंगे, वो बाटा सर की जगह में हर्ष पपी नहीं खरीदना शुरू कर देंगे। एकदम एक सेपरेट फैसिलिटी, आपके फैसिलिटी के अंदर एक सेपरेट फैसिलिटी इसी के लिए बनेगा, और उसमें से हम लोग एक एडिशनल, मतलब ₹1 का भी सेल होगा, दैट विल बी एन एडिशनल सेल। Yeah, Okay, that is our let main us try. शुरू तो करो। Yes sir, on the road. That's right, sir. Sir, the whole idea is very good. You are like, अच्छा लग रहा है, and collaboration and cohabitation तो चलेगा ही। जब लोगों के बिल्कुल। साथ रहेंगे तो पार भी करेंगे रास्ता। Yes, With yes. the base camp, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर ये सर। हर किसी का सपोर्ट लगेगा सर, और वो भी अनकंडीशनल सपोर्ट जिसको बोलते हैं ना, नहीं, I also agree. सपोर्ट तो हर किसी का लगेगा। नहीं, I also agree, sir. इसमें ना ही सिर्फ ये, it is a technical support also that you are going to give regarding the layouts and all. Everything And, will give. So that is will it. So definitely it's a novel idea. And once we start, surely there will be some challenges. Everyone will face challenges, but Yes. we'll overcome them. We'll overcome them, and course correction will definitely be there. So और I एक would say from Pramani, we are interested to be on board, sir. थैंक यू। और एक सबसे बढ़िया चीज, वी कैन हैव अ कॉमन सॉफ्टवेयर जो अपने आप। सर बेसिकली App- कॉमन फैसिलिटी जो होता है ना सर, शेयर्ड सर्विसेज है ना। राइट, अब हमारे पास एक अगर रबर टेक्नोलॉजिस्ट है, एक आपके पास जो है होज असेंबली का बंदा है, एक आपके पास होज का एक्सपर्ट है, एक आपके पास मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, एक आपके पास सप्लाई चेन का एक्सपर्ट है, और जो जिनको 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, यू कैन नॉट, आप उसको उनको हायर करने के लिए इंडिविजुअल नहीं करेगा, लेकिन एज ए शेयर्ड सर्विसेज हम उनको काम करेंगे, और 15 लोगों के बीच में अगर एक हम रबर टेक्नोलॉजिस्ट रहेंगे तो हमारे लिए एक रहेगा कि चलो हम वो हमारे लिए काम कर पाएगा, लेकिन एक बंदा नहीं रख पाएगा उसको, रबर टेक्नोलॉजिस्ट को। कुछ आपका फील्ड फेलियर आया है, वैलिडेशन करना है आपको, कुछ नया टेस्टिंग करना है, तो वो सब के लिए आपके पास बंदे तो लगेंगे ना सर, एक्सपीरियंस। सर देखो सर, ऐसा है कि आइडिया फेल हो सकता है, आइडिया को क्लिक करने में टाइम लग सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली कि इंडियन मार्केट में जो जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो काम कर रहा है, उसको अगर आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बिजनेस की में अपॉर्चुनिटीज मुझे नजर आ रही है। अब वो कितना परसेंट मार्केट शेयर आप लेते हैं, या क्या आपके पास चैलेंजेस आते हैं और उसको आप कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, ये तो एज ए टीम हमको काम करना है। केवल फिंगर्स पॉइंट करने से काम नहीं चलेगा, आपको कहीं ना कहीं सबको मिलके उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल है तो सर। होगा ही। कितना मेरा कहना है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ अगर काम करेंगे तो ये सबका साथ सबका विकास वाला मामला होगा, अदरवाइज जो चल रहा है जब तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सर, है ना भाई। हमारे पास भी खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और आपके पास भी खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम पाने की बात करेंगे तो पाने के लिए बहुत कुछ है। सही बात है सर। ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज इंडिविजुअली आप लिखिए, नितेश जी, अनुज जी को लिखिए द आंसर्स, एंड इंडिविजुअली। और कोई क्वेश्चन? ईशदेव, शांता एंटरप्राइजेस, मनोज जी,
नीतीश जी, हाँ जी सर। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, मेरी एक हाँ। मीटिंग थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। अच्छा, बाकी तो आपसे बात हो गई। मुझे एक चीज बताइए कि चलिए हम लोग असेंबली में आपके साथ जुड़ गए, जी जो सेलर होगा वो क्यों पिच करेगा इस मटेरियल को, जबकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर हम लोग आपको जानते हैं कि भाई आप होज अच्छा लेके आएंगे, फिटिंग अच्छा लेके आएंगे, हम अच्छा क्वालिटी बनाएंगे। जी। पर जो स्पेयर पार्ट डीलर या जो सेलर ऑलरेडी बेच रहा है होजेस, वो क्यों हम लोगों को पिच करेगा? नहीं समझा नहीं। आप सेल तो आप भी कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। नहीं नहीं, यू कैन बी इसमें मुझे जो मॉडल नीतीश ने समझाया था कि हम असेंबलर अलग रहेंगे और सेलर अलग रहेंगे। हाँ नहीं देखो, बट कैन बी द रीजन सेम का आल्सो। मतलब मेरा ये है सर, देखो जैसा हाँ। जैसा अमरीश सर ने बताया है कि आपके पास मल्टी ब्रांड है। एक जो आप ठीक एग्जिस्टिंग में जो काम कर रहे हैं XYZ ब्रांड, वो रहेगा ही, उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक एडिशनल ब्रांड हम लेके आए हैं, मनोज ब्रांड, और उसकी ठीक प्राइस आपसे एग्जिस्टिंग से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक ठीक है है। ना। लेकिन ठीक अगर आपके पास एंड कस्टमर आया कि भाई मुझे तो मनोज ब्रांड का ही होज असेंबली चाहिए, ठीक तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपको वो सप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक ठीक है। एक बात ये है, हम इस पूरे जो प्रोजेक्ट में है, हम एक बेसिकली एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं होज असेंबलीज के लिए, जिसमें कि एक ओके। ब्रांड पुल हो बेसिकली, है ना, कि ब्रांड पुल हो ठीक कि है। अगर आपका एंड कस्टमर आके बोल रहा है कि भाई मुझे तो ये ब्रांड की असेंबली चाहिए, तो आपके ठीक पास है। कोई ऑप्शन नहीं है, आपको देना ही है। अगर आपके पास कोई आता है कि भाई मुझे गेट्स का असेंबली चाहिए, तो आपको देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ठीक अगर है। आपने अक्रॉस इंडिया हमने कोई एक ब्रांड क्रिएट किया है, ब्रांड हमने बनाया है, तो उस ब्रांड का अगर मार्केट पुल होता है, तो आपके पास उसका बिजनेस जनरेट होगा, बेसिकली बात ये। तो आप जो एग्जिस्टिंग ब्रांड बेच रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जो ब्रांड हम सजेस्ट कर रहे हैं, अगर उसका रिक्वायरमेंट आपके पास आता है, तो आपको सप्लाई करना है। और वो नहीं, इसलिए वही मेरा आएगा क्वेश्चन है। कि जो फ्लीट एग्जैक्टली ओनर यही है, क्वेश्चन है। सर मेरा कहना कि जैसे फ्लीट ओनर है, उनके पास हम गए कि भाई हमने ओके। ब्रांड क्रिएट ठीक है। किया है, ठीक। एक इसके असेंबली हम बना रहे हैं, और हाँ। ये सुपीरियर क्वालिटी है, इसमें जो है आपका अच्छा होज है, अच्छी फिटिंग है, अच्छी लाइफ मिलेगी। और हम्म। वो अगर उसमें आपका प्रोडक्ट में वो कन्विंस हो जाता है, और वो बोलता है कि ठीक है हमको इसी में काम करना है, तो आपके ठीक लिए है। तो एक मार्केट जनरेट होगा ना उसके लिए। मैं वही पूछ रहा हूँ, वो पुल कैसे क्रिएट होगा? पुल सर वो कैसे हम क्रिएट करेंगे ना सर, वो काम We हमारा will है ना do, we सर। will create. होगा? ओके। वो Marketing will be done by us. एक्चुअली आपने ओके। लेट ज्वाइन किया ना सर। हम्म। वैसे तो नहीं, मार्केटिंग आपसे में, आइडिया तो मैं पहले सारा समझ चुका हूँ, आपसे हाँ बात हाँ, हुई थी ना। हाँ उसमें जी। मेरा अब जैसे जो फ्लीट ओनर है, उनके पास हम हम्म। गए कि भाई हम कोई सेमिनार्स करने हैं, या एक एडवर्टाइजमेंट करना है, एक कैंपेन चलाना है अक्रॉस इंडिया पर इंडिया बेसिस पे, तो उस सब का इम्पेक्ट तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आएगा ठीक ना सर। ठीक ठीक है। तो बस क्या है, बाकी जो नीटी ग्रिटी है, बाकी जो छोटे मोटे इश्यूज है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपन उसको उसको हल कर सकते हैं, ऐसा कोई भी ठीक है। नहीं है, इसके कुछ सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लगता है कि यार ये आइडिया क्लिक नहीं कर रहा है, तो अपने पास प्लान बी भी है, प्लान सी भी है, प्लान डी भी। ओके। लेकिन कहीं ना कहीं ठीक। से शुरुआत अपने को करनी है, इसलिए ठीक सारा है। ठीक। ये बात करने का रीजन भी है। और जिनके भी साथ काम कर रहे हैं हम, उसके पास एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसीलिए बात कर रहे हैं कि एक बार फुल्ली कन्विंस हो जाए कि हाँ ये आइडिया हमको ठीक लग रहा है, उसके बाद ही हम काम शुरू करें। कोई ठीक है। ठीक। कोई हमको जल्दी नहीं है किसी के साथ काम करने की, या डेस्परेशन नहीं है कि यार हमको काम करना ही है, क्योंकि ऑलरेडी हम्म। 55, 60, 70 जो है लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, तो हमको तो खाली 12 या 13 या 15 लोगों के साथ में काम करना है। ठीक। तो ठीक। तो सिंपल है। हम अच्छा जिसके भी साथ काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करें, 5 साल, 7 साल, 10 साल, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में काम करें। आपका भी ग्रोथ हो, हमारा भी ग्रोथ हो, और एक एक अच्छा सा कोई प्रोडक्ट अपन मार्केट में ला पाए। ठीक। ठीक। खरीदना आपको ही पड़ेगा, हो या फिटिंग हाँ एट द ठीक है। प्री सेट। हम लोग कि सबका 15 लोगों का मिला के अगर हम लोग ने बोला कि इतना क्वांटिटी ऑब्वियसली अधिक रहेगा, ठीक है। ठीक है। and it is not a threat to any hose manufacturer also. ओके। So यस सर, इश्तेम, जैद, सौरभ जी। हाँ जी, गुड गुड इवनिंग जी। हाँ गुड इवनिंग सौरभ भाई।
कैसे हैं? बस सर बस देखिए, एकदम मेरा एक एक वापस से वही सवाल है। मैं आपका पूरा जो आप ये बना रहे हैं बिजनेस प्लान, वो तो समझ में आया मेरे को। जी 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 अब जैसे मान लीजिए कि 10 लोग आपका एनरोल हो गए फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। राइट कि जो आप बोल रहे हैं कि एक कॉमन ब्रांड आप निकालेंगे, मान लीजिए XYZ ब्रांड है, या मैं FCP एक बार उसको नाम दे देता हूँ। हाँ 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 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात। वो FCP का होज आप या तो इंडिया से बनवाएंगे या इंपोर्ट करेंगे, जो भी कर रहे हैं हाँ हाँ आप रखेंगे अपने पास में। और जब मान लीजिए कि अगर कोई एक्स बंदा है रायपुर में, उसको वो मटेरियल चाहिए, तो वो आपको ऑर्डर नहीं, लगाएगा। कुछ नहीं रखेंगे, नहीं 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 कुछ नहीं 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 रखेंगे। वो हमारा, हम कुछ भी परचेज और सेल हम नहीं करेंगे। एफसीपी इंडेक्स का कोई भी रोल परचेज और सेल में नहीं रहेगा। एफसीपी इंडेक्स का रोल केवल रहेगा एग्रीमेंट करने का, राइट सप्लायर को आइडेंटिफाई करना है, राइट मैन्युफैक्चरर को करना है, वैलिडेट करना है, प्राइस फिक्स करना है। और ये सब करने के बाद में जो एग्रीमेंट होगा वो आपका और उस कस्टमर के साथ, उस मैन्युफैक्चरर के साथ में होगा, वही आपको डायरेक्ट सप्लाई करेगा। एफसीपी का ना तो उसमें कोई कट लेना है, ना कोई उसमें कमीशन लेना है। जो प्राइस में सपोज 100 रुपीज पर मीटर में देना है, तो वो आपको 100 रुपीज पर मीटर में देगा। हमको उसमें कोई भी कट या कमीशन उसमें नहीं मिलने वाला। जो भी हमको, सर जो हाँ सर देखिए, इसमें है ना एक प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी जो मेरे को नहीं दिख रही है, वो ये है। अभी एग्जांपल के लिए, आपका रायपुर में एक जो बंदा बैठा हुआ है, उसको आधा इंच R2 चाहिए या 1.25 इंच फोरेस्ट चाहिए, जी 300 मीटर चाहिए। ठीक हाँ है। हाँ अगर अभी वो किसी दूसरे इंडियन मैन्युफैक्चरर से, फोर से, गेट्स, पार्कर और एनी अदर XYZ ब्रांड से वो परचेस करता है, तो वो इन्वेंट्री वो कैरी कर रहा है, तो वो 300 मीटर दे देगा। अभी आपका जो मैन्युफैक्चरर है, जो मलेशिया, टर्की है, जहां पे भी बैठा हुआ है, तो वो उसको 300 मीटर तो देगा नहीं। उसके लिए तो एमओ की 1500 मीटर होगा, 2000 मीटर। That you don't worry, we'll work it out. We have already thought of it. आप जो बोल रहे हैं ना, उनका यहाँ पर गोडाउन रहेगा। अगर वो बाहर से भी रहे, they will have their warehouse here. That we have already thought of. You don't worry about that. So who is investing into that? Your 15 partners or you or that manufacturer? मतलब नहीं, तीनों में That से। manufacturer. That manufacturer. Okay, that manufacturer is investing. Okay, that Yes, was yes. not clear till Yes. now. वो अब नहीं clear नहीं हुआ नहीं है। नहीं नहीं, मैन्युफैक्चरर। So you are भाई saying किसी को like अगर एक some XYZ चाहिए होगा बड़ा manufacturer from across the world is investing into India, and you guys are making a brand out of that, and they are keeping the stock into their warehouse. राइट Now your Right. partner, whenever they need small quantity, that manufacturer will देखो back स्मॉल the Right. equipment, क्वांटिटी, they will छोड़ो sell, कि right? स्मॉल क्वांटिटी हम नहीं कर पाएंगे। कुछ एमओक्यू जरूर रहेगा, उसमें बोलेगा कि आपको 100 मीटर सर चाहिए या स्मॉल 200 मीटर क्वांटिटी चाहिए। मतलब ये होता तो है कि अगर मान लीजिए मास्टर आप सेलर एक का काम 1.25 नहीं इंच रहेगा। का। सर स्मॉल क्वांटिटी का मतलब ये होता है, अगर आप डायरेक्ट किसी मैन्युफैक्चरर से प्राइवेट ब्रांडिंग करवाते हैं, तो एमओक्यू अगर 2000 मीटर का है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपके 15 जो डीलर आप जो भी बना रहे हो, वो 2-2000 मीटर तो लेंगे नहीं 1.25 इंच का स्क्वायर नहीं या 2 बिल्कुल इंच नहीं का लेंगे, स्क्वायर। बिल्कुल नहीं तो लेंगे, उसमें तो बिल्कुल नहीं एमओक्यू लेंगे। आएगा सर, वो तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ हाँ भाई देखो, मतलब मेरा कहना क्या है कि अगर अपन सोच रहे हैं कि कोई उसको साल का, अगर किसी को 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ का काम करना है किसी पर्टिकुलर असेंबलर को, तो डेफिनेटली क्वांटिटी ज्यादा ही होगी उसकी, और कुछ स्टॉक वो अपने पास भी रखेगा। हम्म। भाई कुछ स्टॉक अपने पास रहेगा, कुछ फोरकास्ट देगा कि भाई ये मंथ का रिक्वायरमेंट मेरा है, ये है, प्लस और सौरभ जी, का फोरकास्ट देगा। ये जो जर्नी है, इसमें पेनफुल सिर्फ फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर पहली फर्स्ट ईयर के मेरे ख्याल से 6 या 7 महीना पेनफुल जर्नी होगा, थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग का, जिसके बीच में एफसीपी है जो फाइन ट्यून करने के लिए। उसके बाद तो ये स्मूथ चलने वाला है। जो ठीक है रफ सर। रोड है वो 2025 की शुरुआत है। Sir, if people like you are launching something that will be good and smooth, we all are sure about that, and that's why we are here on the call. ये आप मानिए सर, ये तो हम लोग मान रहे हैं, तभी हम लोग इस कॉल पे हैं। तो थैंक यू मेरे को सर, डाउट उस चीज में नहीं है सर, मेरे को डाउट उस चीज में नहीं है। मेरे को जो फिजिबिलिटी का डाउट है, वो मैं आपको बताया कि यस यस यस, प्रैक्टिकली है ना, दिस विल एक बी ऐसा गैप है जो अभी तक किसी ने क्रिएट नहीं किया है, और वो आप करना चाहते हैं। मैं we'll मानता हूँ address दिस it विल sir, बी द फर्स्ट टाइम, बट प्रैक्टिकल इश्यूज we है will सर। address it, and those godown whatever the stockyard will be accessible to every place, क्योंकि वही फॉर्मूला है, 4 या 5 दिन के अंदर उनको माल जाना चाहिए, उस हिसाब से गोडाउन भी उस हिसाब से होगा। we will recommend those things, वो उसके ऊपर ही चर्चा भी शुरू होगा पूरा, ब्रांड वैलिडेशंस एंड स्टॉकिंग। ओके सर, प्रोडक्ट वारंटी किसके इसमें आएगा? जैसे प्रोडक्ट वारंटी विल बी इट विल बी स्ट्रिक्टली ऑन इम्पल्स साइकिल जो है, अपने लोग उसी हिसाब से फिटिंग भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो ताकि वो नहीं सर, जमे रहे। मैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट का बात कर रहा हूँ। इवन द ब्रांड्स लाइक गेट्स, पार्कर, पोलियोज,
इनका भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है एंड दे टेक बैक द मटेरियल और वापस बैक करते हैं, तो वो कौन है? वो बिल्कुल, आपने क्या बैक करने ये वाले हैं या फिर मैन्युफैक्चरर के ऊपर ही रहेगा। मैन्युफैक्चरर विल गिव ऑल सॉर्ट ऑफ दोस वारंटीज if the hose is fault, there is a fault in hose manufacturing, they'll replace it. If the problem is with fitting, the fitting person will afford all those things. ये सारा इट्स अगेन ये सारा एग्रीमेंट के ऊपर ये सारा पॉइंट आ जाएगा। So is it backed by FCP? Yes, we are there as Definitely, a referee. We are definitely. there as a referee. Okay, okay. ये सबसे बड़ी इसमें- बात ये आपको बताएं सौरभ जी, we have worked for all these hose companies, and even if there is a genuine failure of hose, they try to push it to the assembler कि आपका फिटिंग ऐसा था वैसा था, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, because we will be mediating it. हम लोग बोलेंगे कि नहीं, whether it's a hose failure or a fitting failure, and hose supply करेगा, उसका stake इतना अधिक रहेगा कि he will have to listen to genuine, not listen to us or whatever. अगर हम लोग genuine बोले तो हम लोग जानते कहाँ फेल हो रहा है. See, I have worked with 3 international company, the best known company. हर जगह में यही आके उनके मुंह बताते हैं कि नहीं ये गलत है. They know it. उनके क्वालिटी वाले लोग जब मेजर फेलियर्स होता है वो जाते हैं and finally they put the blame on the fitting manufacturer. या manufacturer नहीं होगा. सर एक लास्ट डाउट मेरा ये है, 1 सेकंड Sure. सर, फॉर एग्जांपल अभी कोई एक असेंबलर है जो असेंबली बना रहा है, उसने आपका जो आप ब्रांड बोल रहे हैं, मैं एक बार उसको जस्ट फॉर एग्जांपल एफसीबी ब्रांड ही बोल रहा हूँ, एफसीबी ब्रांड का होज ले लिया, राइट, एफसीबी ब्रांड का फिटिंग ले लिया, उसको Right. क्लेम भी एफसीबी के स्पेक से कर दिया, तो वो ऑब्वियसली परफॉर्म करेगा क्योंकि टेक्निकली आप उसको बैक कर रहे हैं. अभी एक Right. सिनेरियो का बात करते हैं कि उस असेंबलर के पास में एफसीबी ब्रांड का होज है और फिटिंग ए उसके पास एफसीबी ब्रांड का है, पर फिटिंग भी ऐसा कोई स्पेशल डिजाइन है जो अभी तक एफसीपी ब्रांड नहीं, मतलब उसका ड्राइंग नहीं है, और ये इजीली हो सकता है या स्टॉक में नहीं है, जो भी आपके सप्लायर है उसके पास में, तो वो कोई लोकल XYZ फिटिंग यूज करता है और वो होज असेंबली फेल होता है, तो नहीं किसके कर उसमें सकता जाएगा? है, नहीं करेगा. He will say that FCP से आप उनको वो कस्टमर से ही बोलेगा कि FCP का मेरे पास पूरे ये इस साइट का ड्राइंग नहीं है, that FCP, but you cannot make mix. ये कर सकते कि एक साइड में FCP ब्रांड लगाया और दूसरे साइड में दूसरा ब्रांड लगाया लोकल, वो नहीं हो सकता. That we will be very strict about. अगर if the customer wants consistency, हो सकता है कि 100 में से 2 पार्ट नंबर मेरे पास नहीं हो. Agreed. उस समय आप बोलिए कि ये वाला पार्ट नंबर नहीं है, ये देखिए इसमें क्या करें, इस असेंबली का कोई क्या कहते हैं रिटेल प्राइस लिस्ट पे कुछ नहीं है, दैट मींस इट्स नॉट, द पार्ट नंबर इज नॉट क्रिएटेड, तो आप उसमें अपना ब्रांड बेचिए ना. There will be again सौरभ जी, अगर समझ लो एक आधा पार्ट नहीं है, क्योंकि ये 15 लोगों की कोलैबोरेशन है, वो 15 लोगों में इंटर ट्रेडिंग भी हो सकता है. You know, सर, वो sharing the ऐसा stock फिटिंग ये आज तक डेवलप जरूर ही नहीं होगा. हुआ. There is always a first time ना, ऐसा कोई फिटिंग है जो डेवलप ही नहीं हुआ आज तक. हाँ, there are chances. See, that is why I told कि जो 2025 की शुरुआत का 6-7 महीना जो है थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग वाला मामला है, और हम हर किसी को एक दूसरे को सपोर्ट भी करना है. ठीक है सर, अभी फिटिंग मैन्युफैक्चरर के लिए हम लोग आ जाते हैं. जैसे अगर आप जो होज का तो समझ में आ गया कि कैसे हो रहा है, अभी कोई फिटिंग XYZ मैन्युफैक्चरर है जो आपके डिजाइन से आपकी क्वालिटी स्पेक से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वो आपके 15-20 जो भी डीलर्स हैं उनको सप्लाई करेगा. सो विल ही बी कीपिंग स्टॉक देयर? Yes, फॉर यू? yes. एंड Whether it is the Punjab based, whether it is Haryana, जो भी जिनका भी फाइनल करेंगे, they have to keep some stock. अभी हम इसके लिए थोड़ा सा ये भी प्लान करेंगे कि कोई स्पाइरल का फिटिंग बनाएगा तो कोई ब्रेडेड का फिटिंग बनाएगा, ताकि उनके लिए भी इन्वेंटरी होल्डिंग इजी होगा. ग्रेट सर, चलिए सर, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड. लेट्स होप कि आपका ये जो आपने इनोवेशन किया है वो काफी अच्छा जाए, and we are always there sir, अगर कुछ हमारे लिए हो And सके. we will be looking for, you know, like Saurabh, when you are talking about this, आप ये भी सोच के देखो कि आप भी जो प्लान बैठा रहे हो, जो भी कर रहे हो, you can be a source for us also. Right. This is to everyone.
You can be a source. That is why I took the name of Rajasthan without taking anything. That's क्योंकि what I was- उत्तर he was hinting उत्तर to that, उत्तर no? प्रदेश उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है और राजस्थान भी Right, है. right. So you can बंगाल को be. मत बोलो आप। हाँ? वेस्ट आसनसोल बंगाल बाद को में मत आएंगे सर, बोलो। आसनसोल बाद में आएंगे. ठीक है, okay. No, it is going to be really a collaborative thing. हम लोग डेफिनेटली ऊपर वाले से हम आगे बढ़ेंगे, आप लोगों का भी बिजनेस आगे बढ़ेगा, उसमें आप लोग भी अगर सोर्स कुछ बैठाना चाहो, आप भी सोर्स बैठा सकते हो. It has to be within all of us. But you'll have to stick to the technical जो हम लोग उसी के हिसाब से बना डायमेंशंस देंगे, क्रिम्पिंग उसी के हिसाब से करना पड़ेगा. दोनों साइड में सेम फिटिंग लगाना पड़ेगा, यानी एफसीपी का ही फिटिंग लगाना, वो एक साइड चलेगा. It is time each one of you. Yeah. Okay, anyone else? Chalo, okay. Yes, thank you all. Bye then. Good night. Nitish ji, Yeah. anything else? Yes. Okay, Nitish. क्वेश्चन तो नहीं है? 15 में जाने दो या 20 कर लो, ये जो अपने इधर प्रोवाइड कर आप लोग मेल देते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक बार नीतीश, एक बार लास्ट को एक बार और दे दो वो QR कोड, सो दैट कैन टेक. मेरा ईमेल आईडी शेयर कर देता हूँ. हाँ, ईमेल आईडी भी शेयर कर दो, QR कोड भी दे दो. They can take a scan it and then keep on writing. You can simply scan this to WhatsApp him directly. चलिए सर, थैंक यू वेरी मच. Thank you all. थैंक यू शर्मा जी, संचित जी और वरुण. Thank you, sir. Thank you. TT इंडस्ट्रीज, सिद्धार्थ जी. Right, sir. Thank you for taking a leave. All the best. सर काम करना है. सर इसको एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाना है सर. तो बिल्कुल बनाइए सर. सर. We are there with you. हाँ, तो कुछ काम करने में मजा आएगा. अदरवाइज बिल्कुल सर. है फिर तो सारे फ्लेक्स अवेलेबल है ही इंडिया में. नहीं, ठीक है सर, एकदम करेंगे, हम होंगे कामयाब. यस. चलिए जी, थैंक यू जी.